رابطہ نیوز کریں گے بات پوری سچائی کے ساتھ۔ آداب ناظرین، رابطہ نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ پیش ہے آج کے اہم خبروں کی سرخیاں، ضروری ہیڈ لائنز۔ گلبرگہ شہر کی معروف ہستی مرحوم خسرو حسینی صاحب کو یاد کرتے ہوئے درگاہ خواجہ بند نواز میں ان کے لیے دعائیں کرتے ہوئے نعت شریف صوم و صلات کی نورانی محفل سجائی گئی۔ گرہ لکشمی اسکیم کے 14 انسٹالمنٹ اماؤنٹ کل سے عوام کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے جائیں گے، سدرامیا نے کیا اعلان۔ گلبرگہ ڈی سی صاحبہ فوزیہ ترنم نے اعلیٰ حکام کے ساتھ مل کر میٹنگ رکھتے ہوئے گنے کے کاشتکاروں اور شوگر فیکٹریز کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے اہم پیش رفت کا لیا جائزہ۔ گلبرگہ ایس ڈی پی آئی پارٹی کے زیر اہتمام بنائی گئی ون پارٹی خواتین ممبرز اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے یہاں کے علاقوں میں اپنے مشن کے تحت پوسٹرز کو لگاتے ہوئے دکھائی دیے۔ گلبرگہ ڈی سی صاحبہ فوزیہ ترنم نے گلبرگہ شہر میں آئی ٹی ایف سپورٹس کو رکھے جانے کی تیاریوں کے تحت چندر شیکھر پاٹل اسٹیڈیم کا کیا دورہ۔ پریانک کھرگے نے گلبرگہ شہر میں کئی سارے اچھے کاموں کی شروعات کرتے ہوئے عوام کی ترقیاتی کاموں کے تحت کیا آئل مل اور فوڈ فیکٹریز کا معائنہ۔ گلبرگہ شہر کے درگاہ کے پاس واقع بندوق والا اسٹور روم میں شارٹ سرکٹ ہونے کی وجہ سے اچانک لگ گئی آگ۔ گلبرگہ شہر کی عوام نے حکومت سے کی کھرگے سرکل پر پبلک ٹوائلٹ بنانے کی اپیل۔ آج کی اچھی بات، اگر ہر چیز میں خرابی دیکھیں گے تو کچھ نہ کچھ غلط نظر ہی آ جائے گا، کیونکہ اس دنیا میں سب نظر کا ہی کھیل ہے۔ کچھ لوگ اچھی چیزوں میں بھی برائی دیکھ لیتے ہیں تو کچھ لوگ برائیوں میں بھی اچھائیاں تلاش کر لیتے ہیں، جو کہ بڑی ہی انوکھی اور خوبصورت بات ہے۔ پیش کرتے ہیں گلبرگہ شہر کے اہم خبروں کی تفصیلی معلومات۔ گلبرگہ شہر کی معروف درگاہ خواجہ بند نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین مرحوم حضرت سید شاہ خسرو حسینی صاحب کی یاد میں ان کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہوئے درگاہ میں نعت شریف صوم و صلات درود شریف کی نورانی محفل سجائی گئی۔ ناظرین، حضرت سید شاہ خسرو حسینی صاحب مرحوم کی یاد میں ان کے چاہنے والوں نے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہوئے درگاہ حضرت خواجہ بند نواز رحمۃ اللہ علیہ میں بڑے ہی اچھے انداز سے نعت شریف درود صوم و صلات کی بڑی ہی پیاری نورانی فیضانی محفل سجائی، جس میں کثیر لوگوں کا بڑا سا ہجوم نظر آیا اور الگ الگ شہر گاؤں سے لوگ یہاں پر حاضری دیتے ہوئے مرحوم کو یاد کرتے ہوئے ان کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ گلبرگہ ڈی سی صاحبہ فوزیہ ترنم نے اپنے کلکٹر آفس ہال میں گلبرگہ ضلع کے گنے کے کاشتکاروں اور شوگر فیکٹری کے نمائندوں کے ساتھ مل کر بڑی ہی اہم میٹنگ منعقد کی۔ ناظرین، الگ الگ ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ حکام اور گنے کے کاشتکاروں اور شوگر فیکٹری کے کئی سارے نمائندوں کے ساتھ مل کر فوزیہ ترنم نے میٹنگ کرتے ہوئے کسان یونینز کے رہنماؤں کی رپورٹ حاصل کرنے کے بعد شوگر فیکٹریز کو گنے کی خریداری سے پہلے پیش کردہ قیمت، نقل و حمل کی لاگت اور دیگر مسئلے مسائل پر کسانوں سے جزیرے کے معاہدے کے بارے میں بات چیت کرنے کی یہاں سبھی کو ہدایت دی۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین کو بتا دیا جائے کہ گلبرگہ شہر میں واقع چندر شیکھر پاٹل اسٹیڈیم میں 17 نومبر سے آئی ٹی ایف سپورٹس کے تحت کئی طرح کے گیمز کھیلوں کو کھلایا جا رہا ہے، جس کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے گلبرگہ ڈی سی صاحبہ فوزیہ ترنم نے چندر شیکھر پاٹل اسٹیڈیم کا دورہ کیا۔ انہوں نے چندر شیکھر پاٹل اسٹیڈیم میں واقع بڑے سے میدان کا دورہ کرتے ہوئے یہاں پر کھلائے جانے والے گیمز کی تیاریوں کا جائزہ لیا، ساتھ ہی انہوں نے اسٹیڈیم میں خواتین کے سپورٹس کمپلیکس کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا۔ گلبرگہ شہر میں موجود گلبرگہ ضلع پنچایت راج وزیر پریانک کھرگے نے یہاں پر کئی سارے ترقیاتی کاموں کو کرتے ہوئے جگہ جگہ پہنچ کر انہوں نے کئی سارے کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ناظرین، کل جمعہ کی صبح کرناٹکا گولڈن جوبلی 50 کی یاد میں پریانک کھرگے نے ایس ایم پنڈت تھیٹر پہنچ کر ہالمڈی ستون کے نقل کی نقاب کشائی کی۔
इस मौके पर यहाँ उनके साथ गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर एस.डी. शरणप्पा, IPS SP यडूरू श्रीनिवासलू, गुलबर्गा साउथ MLA अल्लम प्रभु पाटिल, तिप्पणप्पा कमकनूर, जगदेव गुत्तेदार, कूड़ा चेयरमैन मजहर आलम खान, गुलबर्गा DC साहिबा फौजिया तरन्नुम, ADC रायप्पा हुणसंगी, गुलबर्गा कॉरपोरेशन कमिश्नर भुवनेश पाटिल देवीदास के साथ दीगर अहम लोग मौजूद दिखाई दिए। इसी के साथ ही नाजरीन को बता दिया जाए कि गुलबर्गा शहर में मौजूद मंजूनाथ फूड प्रोडक्ट जो कि कारोबारी सलाहियत की एक अनोखी मिसाल कायम करता है, बाजरे की मुख्तलिफ किस्म की रोटियां चटनियां बनाने के लिए मशहूर है, जो कि पूरे गुलबर्गा जिले में सप्तगिरी ब्रांड के तहत फरोख्त किए जाते हैं। उसी फूड प्रोडक्ट फैक्ट्री का प्रियांक खरगे ने कई सारे आला हकाम और ओहदेदारों के साथ मिलकर दौरा किया और वहां पर बनाए जाने वाले रोटियों और चटनियों की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही नाजरीन को बता दिया जाए कि प्रियांक खरगे ने गुलबर्गा शहर में कायम बसवसरी ऑयल मिल का भी दौरा किया, जो कि श्रीमती शीला राजाशेखर और उनके भाई चलाते हैं। बता दिया जाए कि पिछले साल इन्होंने 14 से 16 लाख की सरमायाकारी पर हुकूमत से 7 लाख की सब्सिडी हासिल की थी, जिससे अब उन्हें 85 लाख की आमदनी होने की मुतवक्को है। उनकी कड़ी मेहनत ने 10 दीगर अफराद को भी रोजगार फराहम किया है। हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़म है कि इसी तरह की मजीद कामयाबी की कहानियों को कल्याण कर्नाटक में फिर से दोहराया जाए। इस मौके पर प्रियांक खरगे ने कहा कि बसवासरी ऑयल मिल की कामयाबी खवातीन की कारोबारी सलाहियत को फरोग देने, रोजगार पैदा करने और देहाती मईशतों को बढ़ाने में हुकूमती सब्सिडी के मस्बत असरात की बेहतरीन अक्कासी पेश करती है। गुलबर्गा SDPI पार्टी के ज़ेरे एहतमाम कायम की गई बड़ी ही एक्टिव और बेहतरीन वुमेन इंडिया मूवमेंट पार्टी की खवातीन मेंबर्स अपनी जिम्मेदारियों और कामों को बखूबी अंदाज से निभाते हुए दिखाई दे रही हैं। नाजरीन, विम पार्टी खवातीन मेंबर्स ने गांधी जयंती 2 अक्टूबर से एक बेहतरीन मिशन बनाम खवातीन की हिफाजत हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी शुरू किया, जिसके तहत विम पार्टी मेंबर्स अपने इस मिशन से जुड़े हुए कामों को अच्छे अंदाज से निभा रही हैं और अपने गुलबर्गा शहर के अलग अलग इलाकों एरियाज में घूमते फिरते हुए लोगों को इसके बारे में बताते हुए इस मिशन के पोस्टर्स को जगह जगह पर पेस्ट करते हुए चिपकाते हुए दिखाई दे रही हैं, जो कि बड़े ही काबिले तारीफ काम हैं। इसके लिए हम विम पार्टी खवातीन की तारीफ करते हैं और फख्र से कहते हैं कि आजकल के दौर में जहां पर औरतें अपने घर की जिम्मेदारियां कामकाज में इस तरह से मसरूफ होती हैं कि अपने घर के मसले मसाइल और प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करने के लिए उन्हें वक्त नहीं मिलता। ऐसे हालात और दौर में ये एक्टिव विम पार्टी खवातीन अपने शहर, जिले और पूरे हिंदुस्तान की लड़कियों, औरतों, खवातीन की हिफाजत को अपनी अहम जिम्मेदारी समझते हुए बड़े ही उम्दा अंदाज से काम कर रही है, जिसको देखकर वाकई में बड़ी खुशी महसूस होती है। गुलबर्गा शहर में वाक़ई मारूफ दरगाह ख्वाजा बंदे नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह के बिल्कुल करीब में कायम बंदूक वाला लॉज स्टोर रूम में बड़े ही खतरनाक तरीके से अचानक आग लग गई। जी हां, दरगाह ख्वाजा बंदे नवाज के बिल्कुल पास में वाक़ई बंदूक वाला लॉज के स्टोर रूम में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और देखते ही देखते पूरे स्टोर रूम को आग की तेज लपटों ने अपने घेरे में ले लिया, जिसकी वजह से स्टोर रूम में रखा हुआ सामान, गद्दे, तकिया वगैरह जलकर खाक हो गए। लिहाजा फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड टीम को इस हादसे के बारे में इत्तला दी गई, जिसके चलते फायर ब्रिगेड टीम वहां पर पहुंचकर लगी हुई आग को उन्होंने काबू में किया। साथ ही इस हादसे की रिपोर्ट गुलबर्गा रोजा पुलिस स्टेशन में लिखवाई गई, जिसके बाद वहां पर मौजूद रोजा पुलिस स्टेशन सर्कल इंस्पेक्टर अनीस मुजावर ने अपनी टीम के साथ हादसे की जगह पहुंचकर वहां का मुआयना किया। गुलबर्गा शहर की आवाम ने सरकार हुकूमत से की जरूरी और अहम अपील। गुलबर्गा शहर के खरगे सर्कल पर आवाम के लिए कोई भी टॉयलेट वॉशरूम अवेलेबल नहीं है, जिसके चलते वहां पर मौजूद आवाम को काफी तकलीफें पेश आने की शिकायतें मौसूल हो रही है। जी हाँ, ये देखने सुनने को तो छोटा सा और आम मसला दिखाई देता है, लेकिन ज़रूरत के वक्त पब्लिक प्लेसेस पर आवाम के लिए टॉयलेट्स का न होना बड़ा ही अहम मसला और मुद्दा बन जाता है। खास करके लेडीज़, औरतों के लिए शहर के पब्लिक प्लेसेस पर कम से कम एक साफ सुथरे टॉयलेट की फैसिलिटी का होना बेहद लाजिम और ज़रूरी है। लिहाजा इसी अहम मुद्दे और मसले को बताते हुए यहाँ की अवाम सरकार हुकूमत से गुजारिश और अपील कर रही है कि गुलबर्गा शहर के खरगे सर्कल पर अवाम के लिए, लेडीज के लिए टॉयलेट जरूर और जल्दी बनाया जाए।
बता दें कि खरगे सर्कल एक ऐसा एरिया है जहां पर हमेशा काफी भारी भीड़ देखने को मिलती है और लोग अपने कामों के चलते यहां से गुजरते हुए अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। खास करके खवातीन यहां पर रोजाना अपने कामों के चलते घूमती फिरती हुई दिखाई देती हैं। इसी के चलते खरगे सर्कल पर आवाम के लिए, लेडीज के लिए एक पब्लिक टॉयलेट का होना बेहद जरूरी है। इसी चीज और बात की डिमांड करते हुए यहाँ पर कई सारे लोगों ने इस एरिया में पब्लिक टॉयलेट को बनाने की हुकूमत से गुजारिश की है। गुलबर्गा शहर वालों, खवातीन और कर्नाटका की खवातीन के लिए अच्छी खबर। कर्नाटका वजीर आला सिद्धरमैया ने हाल ही में अपने गृहलक्ष्मी स्कीम अमाउंट के 14th इंस्टॉलमेंट के रिलीज करने के बारे में अहम जानकारियां आवाम को फराहम की हैं। जी हां, सितंबर महीना 14th इंस्टॉलमेंट गृहलक्ष्मी अमाउंट के बारे में अहम जानकारी दी गई है कि कल 10 नवंबर से 13 नवंबर के दरमियान आवाम के अकाउंट में ये स्कीम अमाउंट डाल दिया जाएगा। बता दें कि कई सारे लोगों से हमें ये शिकायतें सुनने को मिल रही थी कि उन्हें गृहलक्ष्मी 14th इंस्टॉलमेंट अमाउंट अभी तक नहीं मिला। लिहाजा उसी परेशान और फिक्रमंद आवाम को बता दिया जाए कि कल 10 नवंबर से लेकर 13 नवंबर तक ये पेंडिंग अमाउंट उनके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे, जिसके बारे में खुद सिद्धरमैया साहब ने जानकारी दी है। लिहाजा इस गृहलक्ष्मी 14th इंस्टॉलमेंट के पेंडिंग अमाउंट के बारे में जानकारी मिलने के बाद अब आवाम को चाहिए कि वो पूरे सब्र तहम्मुल के साथ अपने इस पेंडिंग 14th इंस्टॉलमेंट अमाउंट का इंतजार करे। इसी के साथ ही नाजरीन को अहम जानकारी भी दे दी जाए कि कुछ खवातीन को ये अमाउंट ऑलरेडी मिल चुका है, जिसका सबूत लक्ष्मी हेबाड़कर ने अपने सोशल मीडिया पर बताते हुए अवाम को पैगाम दिया कि गृहलक्ष्मी स्कीम अमाउंट खवातीन को वक्त पर मिल रहे हैं, जिसका फ़ायदा उठाते हुए खवातीन अपनी ज़िंदगियों को और भी अच्छी तरीके से और बेहतर अंदाज से गुजार रही है। जैसे कि बागलकोट ज़िला के बेलारगी तालुका के कोर्टी गांव की रहने वाली गंगवा बिरादर नामी खातून ने गृहलक्ष्मी स्कीम को माहाना हासिल करते हुए 24,000 रुपये की बचत की है, जिसमें से उसने 8,000 रुपये की एक सिलाई मशीन खरीदी है और बचे हुए पैसों को उसने अपने घर वालों की ज़रूरतों को पूरा करने में इस्तेमाल किया है। गंगावती बिरादर ने यहाँ पर कहा कि उसने सिलाई मशीन को खरीदते हुए अपने पड़ोस की बच्चियों और नवासी को सिलाई की तरबियत दी है और उन्हें काबिल बनाने की वो पूरी कोशिश कर रही हैं। इस बात से खुश होते हुए लक्ष्मी हेबाड़कर ने कहा कि गृहलक्ष्मी योजना की वजह से आज लाखों गरीब खानदान की औरतें अच्छी और बेहतर जिंदगियां गुजार रही है और ये योजना उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो कि इन गारंटी स्कीम्स की तनकीद और बुराई करते हैं। इसी तरह की तेज, ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।